سبحان اللہ. میرے میٹھے بابا جانی، میرے میٹھے بابا جانی آپ پہ قربان. فیضان عطار، فیضان عطار، فیضان عطار، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا. عطار تے حامی و ناصر مصطفیٰ، کسی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آپ کب سے وابستہ ہیں؟ سن 84 سے الحمدللہ مرشد کا ایسے ہاتھ پکڑ کر بیعت ہوا تھا شہید مسجد کھارا در سے. اچھا، تو ادھر باب المدینہ کراچی میں ہوتے ہیں؟ جی جی. میرا نام قمر خان اتاری ہے. حلقہ پہلے لیاقت آباد کا تھا، اب کورنگی کراسنگ بٹائی کالونی. پٹھان ہے؟ جی خان خان. یوسف دائی پٹھان. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کے شہر سے آدھا گھنٹے کا فرق ہے. ہم رامپور کے ہیں، اعلیٰ حضرت جو ہے بریلی شریف کے، آدھا گھنٹے کا فرق ہے. بابا جان میرا آپ سے سوال، سب سے زیادہ عمر کس کی ہے؟ جی جی سب سے زیادہ عمر کس کی ہے؟ سب سے زیادہ عمر کس کی ہے؟ 75 سے اوپر. کوئی 80 سال 85 سال. 80 85 والے نہیں ہیں. 75. اس سے اوپر کوئی 70 سال. میں ان کو نہ پوچھوں. 73. میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں. آپ یہ بتائیے عید الفطر کون سے اسلامی مہینے میں کس تاریخ کو آتی ہے؟ جلدی بتائیے. عید الفطر کون سے اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ کو آتی ہے؟ انگلش سرائی کی. اردو نہیں سمجھتے؟ عید الفطر سمجھتے ہیں؟ عید الفطر آپ عید مجھے چھوٹی عید رمضان شریف، جی بڑی عید جڑی ہے قربانی والی عید. چھوٹی عید رمضان شریف یہ مہینہ تو چھوٹی عید رمضان شریف. چھوٹی عید کون سے اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ کو آتی ہے؟ دیکھو سرائی کی میں پوچھ لینا. نہیں یہ سوال سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. پڑھال کو نہیں سونا مطلب گال دے میں پڑھال نہیں میں ان پڑھ ہم مسادے بس محبت ہے تیر دی آپ سرائی کی بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ. اچھا تو آپ بتائیں گے بابا جی 75 سال والے؟ اچھا یہ بتا دیں گے. اور کس کس کو نہیں معلوم میں پوچھ لوں پہلے. اور کس کس کو نہیں معلوم کہ یہ چھوٹی عید کون سے اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ کو آتی ہے؟ کس کس کو نہیں معلوم؟ ایک اور آپ کو نہیں معلوم اور آپ کو بھی نہیں معلوم. 3 4 5 پٹھان بھائیوں کو بھی نہیں معلوم. آپ کو معلوم ہے وہ پٹھان بھائی. اچھا ماشاء اللہ. چلو پٹھان بھائی سے جواب لیتے ہیں. آپ بتائیں گے؟ چلو یہ پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں، دونوں بتا دو، دونوں کا فرق دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے دونوں اکول ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اتاری شجاع آباد سے ماہ رمضان کے اعتکاف میں پورے مہینے کے اعتکاف میں آیا ہوں. الحمدللہ. پچھلے سال بھی حاضری دی تھی. ماشاء اللہ. اور آپ نے عید کا سوال کیا. عید شوال کی پہلی تاریخ، اسلامی مہینہ شوال کی آپ کون سی بتائیں گے؟ ان کو بھی تو پوچھ لیتے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یوسف شاہ کے پی کے بٹگرام. عید الفطر یکم شوال مکرم کو ہوتی ہے. ماشاء اللہ. دونوں کا جواب درست ہے. اچھا اب آپ بتائیے. چلو آپ ہی بتا دیں. آپ ہی بتا دیں کہ عید کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ عید کے 3 دن ہوتے ہیں بابی. اور کون بتائے گا؟ آپ خان صاحب آپ بتا دو نا. عید کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ چھوٹے عید کے 3 دن ہوتے ہیں اور بڑے عید کے 4 دن ہوتے ہیں. اور بکرے والے جو بکرے ذبح کر رہے ہیں اس کے 4 دن ہوتے ہیں اور یہ روزے والی عید کی 3 دن ہوتے ہیں. کون سی عید؟ بکرے والے کی 4 دن اور روزہ رمضان والے عید کی 3 دن. تو آپ بتاؤ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ چھوٹی عید جو عید الفطر ہے 1 دن کی عید ہوتی ہے اور عید القربان جو ہوتی ہے وہ 7 دن کی ہوتی ہے. اس میں 3 دن سے لے کے 7 دن تک ہوتی ہے. وہ بقرعید بقرعید. آپ کہاں سے تشریف لائے؟ کشمیر سے تشریف لائے، ضلع ہٹیا مالا سے.
हाँ भाई कितने, 3 दिन, 7 दिन, 1 दिन, एक दिन वाले कितने हैं? 1 दिन वाले ये देखो थोड़े से छोटी ईद के, हाँ 1 दिन वाले थोड़े से। 3 दिन वाले कितने हैं? ईद के 3 दिन होते हैं। हाँ ये भी है ना, दोनों तकरीबन बराबर बराबर। और बस 1 और 3 ये 2 ही है ना, इसमें 2 ही ऑप्शन है। और ये बकरीद के 7 दिन ये बोल रहे हैं, 4 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 3 दिन, वो 4 दिन, 2-4 दिन वाले हैं जी, 3 दिन न 4 दिन वाले एक खान साहब है। असल ईद उल कुर्बान जो होती है, जिस दिन कुर्बानी होती है, वो होती है 2 दिन। 2 दिन हमारे देहाती साहब में हम इसलिए बता रहे हैं कि देहाती वहाँ देहात है, पहाड़ों में रहते हैं लोग, बाहर से जाते हैं, वो कुर्बानी 7 दिन तक करते रहते हैं। मैं इस लिहाज से 7 दिन बता रहा हूँ। 7 दिन आपके कश्मीर में जहाँ से आप तशरीफ लाए, कौन सा? कश्मीर जिला हटियां वाला से, हकीम वाला। जी जी। अच्छा, वहाँ 7 दिन तक कुर्बानियाँ करते रहते हैं? हाँ, बस बाहर से लोग, अंदर बाहर से मजदूर लोग जाते हैं, फिर वो कुर्बानी करते रहते हैं। तो बकरे की करते हैं, मुर्गी की भी कर देते हैं? नहीं, बकरे ही होते हैं, बैल वगैरह होते हैं। अच्छा, नहीं क्या भरोसा, जब 7 दिन तक करते हैं तो कुकड़ी भी काट डालें, क्या भरोसा? ये दोनों ईदें जो है ना, दोनों का 1-1 दिन है। ईद की नमाज तो 1 ही दिन होती है ना, है ना? वो कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 7 दिन नहीं होते। तीसरे दिन यानी कि पहले दिन 10 तारीख को तो ईद होती है, 10 ज़ुल्हिज्जा। फिर दूसरा दिन है ना, वो कुर्बानी के लिए उसकी इजाजत है। तीसरे दिन भी गुरूब आफ्ताब तक ये कुर्बानी, तो ये मतलब अय्याम नहर कहलाते हैं, समझो। बाकी असल ईद का दिन एक, और ये छोटी ईद में भी ईद का दिन एक। उसमें तो चलो कुर्बानी का कुछ तस्वुर है तो आदमी उसको, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। खामाखा लोगों ने 2 दिन बढ़ा दिए, छुट्टियां करते हैं और ये इस तरह करते हैं। जैसे हम जश्न विलादत मनाते हैं तो वसवसे आते हैं कि ये किससे साबित है, तो मैं यही तो कहता हूँ कि 3 ईद साबित करो, किस हदीस से साबित है? ये मीठी ईद जो मनाते हैं, एक ही तो ईद है, तो दूसरे दिन का ईद की नमाज है। जायज़ है 3 दिन जो मना रहे हैं छुट्टियां, लेकिन ये 3 दिन ईद का नहीं है, ईद का 1 ही दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जानी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 60 साल की उम्र के बाद जो है, जब ज़ईफ़ हो जाते हैं लोग तो घर में तकरार करते हैं, लड़ते हैं, उलझते हैं, बच्चों से भी लड़ते हैं, घर में उलझते रहते हैं, तो ये तासुर आप में माशाल्लाह मैंने नहीं देखा, इसकी क्या वजह है? आपको गुस्सा नहीं आता? आपने मेरे घर में देखा है मेरा क्या माहौल है? आप घर की बात कर रहे हैं ना? नहीं, घर में लड़ाई करते, जाहिरी तौर पर जो देखा है तो आपको गुस्सा मैंने कभी देखा नहीं। नहीं तो इस तरह कैसे गुस्सा आएगा? जब वास्ता पड़ेगा तो फिर पता चलेगा ना गुस्सा आता कि नहीं आता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 62 है। या उस पर तो 2 साल से लड़ाइयाँ, खुदा ना खास्ता। कई बार घर पे आपके साथ खाना खाया, हमने कोरमा रोटी खाई, आप सब्जी दाल खा रहे थे, हमारे साथ बैठे खाना खाया आपने। कई मरतबा आपके साथ गया जाता था यहाँ से मैं। अच्छा, आप कहाँ के हैं? मैं अल्लाह बचा अतारी, मेरा नाम है, लांडी एक में रहता हूँ। अच्छा, आपने कोरमा रोटी खाया जी, इन्होंने दाल मिले सुने थे, दाल सब्जी, दाल से फिर भी गुस्सा नहीं हुआ? फिर गुस्सा नहीं आया। ये क्या हुआ? ये कोरमा रोटी खा रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? जी हाँ। मेहमानों से गुस्सा करना और घर के 4 दीवारी का मसला है ना गुस्से का, तो जी जी जी, जो ये फरमा रहे। ये बाबा जी बस आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे सब कुछ दिया। मैं भी खास में चांदनी चौक में आपसे हाथ मिलाया था, एक इस्लाम में लेकर आया था, अल्लाह जलने से उनका इंतकाल हो गया। मतलब फिर मैं भी खास में रहता था, मैं भी खास अब कराची में मेरे 40 साल हो गया है। अल्लाह। और लांडी एक दिन में रहता हूँ, ठेला चलाता हूँ, रमजान में ठेला नहीं लगाता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ बस। अच्छा, उम्र कितनी आपकी? 70 के करीब ही है। मतलब अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, ठेला सेहत चला, तो अच्छी अभी भी ठेला चलाता हूँ माशाअल्लाह। बस। अभी दुआ कर अल्लाह नजर बद से बचा। मदीने जाना है बस, मदीने बस आखिरी उम्र है। आखिर मदीने जाना, आपने सब कुछ दे दिया, क्या रौनक है दुनिया देखो। आपने सब कुछ दे दिया, बस मदीने जाना बस। काश बस एक ही दिन हो के मदीना। जी जी बस, जी जी, पासपोर्ट भी बना के रख दिया बस, अखराज हो जाए चले इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, ये भी जुनू है उनमें भी। बाबा जानी मेमड़ी में गाल कराया, उर्दू में एक बात करूँगी।
बाबा जानी माशाल्लाह आपसे मेरे डाकखाना तो मैंने खोल दिया, पुराना कागजी बाजार के, खारादार के, गुलजार हबीब के। बाबा जानी सवाल ये था, मैं से अल्फाज में बयान कर रहा हूँ मैं। सबों के घरों में बाबा जानी ईद के दिन, ईद समा, ईद शहीद माशाल्लाह, जिसकी खुशी के बाद खुशी नहीं मिलती माशाल्लाह, सबके घरों में किसी के घर में बिरयानी बन रही है, किसी घर में चिकन पुलाव बनता है, किसी के घर में क्या बनता है। बजा तो खुद मेरे घर में भी अच्छी खासी वैरायटी बनती है ईद के मामला के सिलसिले। बाबा जानी आप क्या नोश फरमाते हैं ईद के दिन? नोश क्या फरमाते? आपको पूछा कि आप नोश क्या फरमाते हैं? अच्छा, क्या बाबा जानी क्या खाते हैं माशाल्लाह? आपका क्या ख्याल है, क्या खाता हूँ? मुझे पता है कुछ ना कुछ लाइट ही खाते होंगे, जिस तरह नजर आ रहा है माशाल्लाह। इस तरीके से हमारी तरह है। जो पेट कबूल करे वो खाना चाहिए। बड़ी बात है, बड़ी बात है। बाबा जानी बता दें क्या खाते हैं? मैं तो सुबह नाश्ता करता हूँ सारे भाइयों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आमतौर पे ईद की रूटीन यही है, सेवैयाँ और ये इस तरह की चीज आती है। ये सुभान अल्लाह। ईद के दिन पिछले सालों तो ये रूटीन रही है, अब मैं सब्जियों और फलों पे आ गया हूँ। इस ईद को देखो क्या होता है माशाल्लाह, ये मामला बने। अच्छा, फिर दोपहर को नहीं खाता मैं, फिर मगरिब के बाद सुभान वही घर का नॉर्मल खाना। माशाल्लाह। ये कोई स्पेशल डिश हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो अब तो पकाता ही नहीं है ना कोई, घर में तो हमारे सब वीराना है इस मामले में। जो अल्लाह देता है वो खा लेते हैं। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाला मुसा गुजरात से आया हूँ। माशाअल्लाह। तो मतलब सानू पीर साहब की जरूरत सी, पीर साहब ते फिट हो रहे सी, तलाश कर रही थी कि किसी के हथ में हथ ही है। तो दावत इस्लामी का उस वेले मतलब स्टार्ट सी जी, जब स्टार्ट सी तो सानू एक मतलब 4 दिन लैके जुमेरात इज्तिमा थे। इज्तिमा जब गए तो 4 इज्तिमा तो बाद मतलब असी फिर कराची आके आप दे हथ बैस की ते ओरा क्रेडिट ये लब्भा कि अज मतलब मेरी औलाद बहुत रह के अल्लाह ने बड़े करम ने ये सिर्फ बाबा जानी आप कैसे मेरी औलाद बहुत रह के मेरी बहुत माशाअल्लाह वो कई दे मुझे देते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला आपकी फरदरात करे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला सबकी औलाद को नेक करे। आमीन। ये सब आपका सदका है। दावत इस्लामी के लिए गाँव में जाकर काम किया, अल्लाह ने इतना काम कराया हमसे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त दाने लेकर ना घर चो दाने लैके खजारे मदीना खड़ी देने बच्चों वास्ते चलो जरूरत सी। अज भी उशर के बारे खास करके बयान कराया करो कि उस उशर के बारे साड़ी तलीब नूं बड़ी जरूरत है पैसे की, कि वो पैसे ना चलती उंज नहीं चलती। ये बारे तुसी मतलब बयान इमरान साहब करन ते बड़ा असर होंदा है। ते ये बारे एक जी फुल्लां दी बेहरमती होंदी है ना, जेडे विआहां दे शादियां ते जेडे दूल्हे दे गुलाब दे फुल फुटे जांदे ने, उन्हें पैरां च आंदे ने, वो दिल रोंदा है काश कदों खत्म होवे। बाकी बड़ी बड़ी ईद मुबारक होवे। मेरी औलाद जिहड़ी है उन्होंने तुहाडा सदका 2 बारी अल्लाह ताला ने मदीना बुलाया, 2 बारी अल्लाह ताला ने मदीने की हाजरी लवाई। इस वेले तुहाडा सदका तरबियत औलाद दी असां उस वेले सारिआं नूं बैत कराता। तुहाडा जिहड़े है सन, मेरी 2 बेटियां भी इत्थे आईयां, मेरी वाइफ भी, सारे तुहाडे घर उस वेले रहे सी। असीं अफजाने मदीना उस वेले छोटा जिहा कमरा ने ते साडी मुलाकात, मैं क्या मतलब जो सानूं नौकरान लै गए ना, मैं कहा यार मुलाकात तो करा हदर साहब नाल, वो तुसीं मेरे नाल बैठे थी दौरान। मुझे कहते ये मुझे मैं वो पीर साहब हो गए, उधर बैठे हो गए, उधर बैठे हो गए। तो आप जब हमारे साथ थे ना तो बहुत बहुत खुशी हुई, दिल जब बागो बाग हो गया। तो जो औरतें थी आपके घर की, वो ना पर्दे में वो टोपी वाला बुरखा पा के आई थी, वो कहीं और कमरे में बैठी हुई होंगी। घर में थी। अमीले सुन्नत के सामने तो औरतें आती नहीं उधर घर गए थे ना, वो हमारी नुकरान भी आई थी उधर। नाम दे दिया होगा बेतो। हाँ बाजी है उधर लाला मुसा में, वो उसका उधर ले गई अपने मतलब इन्होंने घर। तो आप जब पापा के करीब बैठे तो आपको ये नहीं पता था कि हजरत साहब है? मैं बैठा हूँ, मैं यार पीर साहब हैं। मैं क्या पीर ना मुलाकात करा यार, मतलब और ये आपके करीब बैठे हुए थे। उसने नहीं सुना ये मतलब इन्नी तमीद या सी नवे नवे दावत इस्लामी च। मैं क्या पीर साहब ना मुलाकात कराओ। और मुझे मुदस्सर भाई कहते हैं ये पीर साहब है। मैंने तो बस मतलब देखा क्या सादगी है, क्या मतलब बहुत बड़ी ऊंची जगह को बैठे होंगे, ये करेंगे वो करें। जब ये देखा तो बस फिर अल्लाह अल्लाह हो गया। बस
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਜ਼, ਮਤਲਬ 2 ਫਰਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ दो फर्ज पढ़ के चले हाँ चले जाएंगे। बच्चों क्या तासर लेंगे, छोटे बच्चे क्या तासर। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਧੂੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि लोग अपना उशर देंगे तो इनका अपना फर्ज अदा हो जाएगा। वो गुनाह से बच नहीं देते। तो सब्जियों के बारे में, गंदम के बारे में गर्म घरों में जा रही है, लोगों को पता ही नहीं। पहले उशर कहते ये जगह है, अब आस्था इनकी मतलब आस्था पता चल गया कि आप कहते हैं ये ठीक है, ये सब इनका सदका है। मतलब आप समझे, हमें भी पता नहीं था उशर क्या होता है। माशाअल्लाह। तो अब इंशाअल्लाह ताला उशर इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बहुत मुफीद बात है। अब मेरी सुन लीजिए, उशर फर्ज है, जिन पर फर्ज है उनको अदा करना चाहिए। और अपनी मजालिस बनी हुई हैं और अपने साईं भाई लाखों लाख रुपए का उशर जमा कर भी रहे हैं, मजीद करना चाहिए और करना चाहिए। अच्छा सुनो, मेरी गल सुनो, वो जो आपने फरमाया ना कि जैसे 2 रकात जुम्मे की नमाज पढ़ के घर चले जाते हैं, वो झूठ बोलते हैं, जो मस्जिद में नहीं पढ़ते जो घर में क्या पढ़ेंगे। ये बात सही नहीं है। हाँ, ये ना क्या, हमें क्या पता कि वो झूठ बोलते हैं। हमें नहीं हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक शख्स ने चोरी की, तो आपने फरमाया तूने चोरी नहीं की? तो उसने कहा खुदा की कसम मैंने चोरी नहीं की। तो सैयदना ईसा रुहुल्लाह अला नबीना वालेसलाम फरमाते कि मेरी आंखों ने धोखा खाया। यानी एक मुसलमान झूठ कैसे बोल सकता है, झूठी कसम कैसे खा सकता है। देखा अपनी आंखों से देखा, फिर भी फरमाया कि मेरी आंखों ने धोखा खाया। तो मुसलमान की इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। तो आदमी को बात होगा मजबूरी भी होती है। मैं बारहा फर्ज पढ़ के घर चला जाता था कि लोग वरना लिपटते थे अपनी शहीद मस्जिद वगैरह से, और घर जाकर सुन्नतें पढ़ता था। ये देखा हो हनीफ भाई ने, हनीफ भाई देखा है ना। तो अब ये कि कोई बोलेगा ये मस्जिद में नहीं पढ़ता, तो अब बोलता है कि सुन्नतें मैं घर पे पढ़ता हूँ, ये झूठ बोलता है। तो जाहिर है कि तो मुसलमान पर अपने को हुस्न ज़न रखना चाहिए। हाँ, अलबत्ता इसीलिए वो जुम्मे को सुन्नतें वगैरह मस्जिद में पढ़ लेना अच्छा है ताकि कोई बदगुमानी ना करे। तो इस बात से आप तौबा भी कर लें, मशवरा हाँ कर, ऐसा ना कहा जाए कि झूठ बोलते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब को उल्टा हाथ बढ़ाए ना तो उसको उल्टे हाथ में नहीं देना चाहिए, सीधे हाथ में देना चाहिए। सीधे हाथ से खाना, सीधे हाथ से पीना, सीधे हाथ से लेना, सीधे हाथ से देना, ये सुन्नत है। उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना शैतान का तरीका है। हाँ, सज्जा और खब्बा जो पंजाब भी समझते हैं, तो ये सज्जा सीधा, ये खब्बा उल्टा। बाबा जानी हमें बेहद खुशी हो रही है। इस खुशी के मौके पर सबसे पहले हमारे इस्लामी भाइयों को मैं इस बात की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि बाबा जानी ने हमें सबसे पहले अपनी बिरादरी में शामिल किया, और बिरादरी में शामिल करने के बाद में आज मुलाकात का शर्त बख्श का इस खुशी के मौके पर निकाहों से मुलाकात का। जब अमीर सुन्नत फरमाते हैं मेरी बिरादरी, तो आपको कैसा लगता है? आपने हमें बिरादरी अच्छा, में ये शामिल बिरादरी करके हमें इस पंजाबी कदर- या सराइकी में समझते हैं कि बिरादरी क्या होता है। बाबा जानी बिरादरी में शामिल करके इतनी आप बड़ी समझते खुशी- हैं बिरादरी। हाँ हाँ, माशाअल्लाह। आपने हमें बूढ़ों को इज्जत बख्शी और बुलाया। इतनी खुशी हो रही है कि आपने हमें बुलाकर बूढ़े नहीं बल्कि जवान कर दिया। और इस जवान करने पर आपकी खिदमत में शेर अर्ज है, वही कि बिकते न थे कोई पूछना था, आपने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। बाबा गुजारिश मेरी है कि मैं हैदराबाद बाबुल इस्लाम से लतीफाबाद 11 नंबर से हाजिर हुआ हूँ। मैं जवान हुआ करता था और
लतीफाबाद की मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की खिदमत के तौर पे सदर था। कौन सी मस्जिद? तो उस मुस्तफा जामा मस्जिद कहाँ पर? लतीफाबाद 11 नंबर मुस्तफा मरकजी वहाँ तो मुस्तफा मैं जामा। आया हूँ, मतलब तो हजरत वहाँ से मेरे ख्याल में आया हूँ। आपका 8 नंबर की 11 नंबर 11 नंबर से 11 नंबर जी। जहाँ वो मौलाना अब्दुल लतीफ होते थे। अब्दुल अली अशरफी साहब, अब्दुल लतीफ 8 नंबर में होते थे। वो 8 नंबर, वो 8 नंबर वहाँ गया हूँ मैं। जी जी, वो हमारे करीब में ही थे। अच्छा। तो बाबा जानी जब आपका पैगाम मिला, मैं दावत इस्लामी से उस वक्त से मुंसलिक हूँ जब इब्तदाई तौर पर जज साहब के ग्राउंड में हुआ था, तो वहाँ से हमारे यहाँ बसें भरकर हम एक जुलूस की शक्ल में वहाँ हाजिर हुए थे। और सारा जज्बा ये था कि एक हुक्म पर लब्बैक किया, सब हाजिर हुए और जलसे में शिरकत की, और अल्लाह की मेहरबानी से उस वक्त से दावत इस्लामी से मुंसलिक हूँ। वैसे मैं अभी तक जलसा ही बोल रहे हो जी, वैसे मैं हजरत नहीं, वैसे क्या आप जलसा करते थे, आप अपने हम इज्तिमा कहते करते थे? इज्तिमा में हमने कान पकड़, गलती हो गई। इज्तिमा में शिरकत की बाबा जी। दूसरी अर्ज मेरी है कि मैं हिंदुस्तान रामपुर में मेरे पीर और मुर्शिद मियाँ मोहम्मद मकसूद अहमद नक्शबंदी से मैं बैत हूँ दावत इस्लामी बनने से पहले रामपुर शरीफ में। लेकिन जब से दावत इस्लामी बनी है हमें पीर की सोबत नहीं मिल सकी। आप अल्लाह को प्यार होकर वफात पा चुके हैं, तो जब से दावत इस्लामी बन सकूँ इन्हीं की सोबत में चल रहा हूँ। जब से पूरी जवानी और बुढ़ापे की नेज पर आ चुके हैं, यहाँ सादगी के साथ हैं। तो बाबा जानी मेरा आपसे एक सवाल ये है सबसे पहला कि मैंने अपनी ज़िंदगी के, मेरी उम्र तकरीबन 67 साल है शनाख्ती कार्ड के हिसाब से, लेकिन मेरी 70 से ऊपर है वैसे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के दौरान ये देखा है कि एक छोटा सा घर होता है, हम उसके सरबरा होते हैं, हम उस घर का निज़ाम सही माने में चला नहीं सकते, नज़्म व ज़ब्त कायम नहीं रहता। उसके अलावा कहीं किसी बड़ी बड़ी तंजीमें देखी उनको भी नहीं चला सके। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, ये देखने में आया है कि हमारी दावत इस्लामी, मेरी दावत इस्लामी जो दुनिया के 200 ममालिक से ज़्यादा में काम कर रही है आज पूरी, और आज 200 ममालिक में पूरी दुनिया में दीन का काम कर रही है और दीन का डंका बजा रही है। आज हमारे मुखालिफिन भी इसके मोतरफ हैं कि दावत इस्लामी कोई काम कर रही है। इस बात के मोतरफ में अल्लाह की मेहरबानी से उन जगहों पर जहाँ पर लोगों का कलमा पढ़ने नहीं आता था, या रसूल के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे मुल्कों में जहाँ मुसलमानों को दूसरी बुरी नजर से देखा जाता था, जब से दावत इस्लामी वजूद में आई है, दावत इस्लामी मुसलमान से लोग प्यार करने लग गए हैं। गैर ममालिक में भी देखा गया है, हमारी दावत इस्लामी के जब माहे रबीउन नूर में जुलूस निकलते हैं तो उसको देखकर उनके दिल भी बाग बाग हो जाते हैं और वो तारीफ करते हैं कि मुसलमान एक अमन पसंद कौम है। और इस बात का सबूत हमारी दावत इस्लामी पूरी दुनिया को दे रही है। दावत इस्लामी जो सबक हासिल करें कि दुनिया के 200 ममालिक से ज्यादा में दावत इस्लामी का काम हो रहा है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज तक किसी किस्म के नज़्म ने कोई खलत नहीं पड़ा है। तो मेरी तमाम आलम इस्लाम के सरबराहों से मेरी गुजारिश है कि अपने मुल्कों के अंदर भी दावत इस्लामी के कामों पर अमल करें जो काम हो रहा है। तो बाबा जानी मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हम लोग अपने घर का नज़्म नक्श नहीं संभाल सकते और पूरे कामयाब नहीं होते। दावत इस्लामी 200 ममालिक से ज़्यादा में काम कर रही है, जेलों में काम कर रही है, हर शोबे में काम हो रहा है और अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से कामयाबी हमारा मुकद्दर बन रही है। इसका बाबा जानी मुझे ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि 200 ममालिक में ज़्यादा से हमारा काम हो रहा है और किसी किस्म के नज़्म अपने किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है और तरक्की हो रही है, मदरसे बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं। और आखिर में बाबा अर्ज ये है, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी। मेरा छोटा सा ज़मींदारी का शोबा है और हैदराबाद में मैं डॉक्टर मजलिस के अंदर हूँ। जमींदारों को भी लिया उन्होंने, डॉक्टर निज़ाम साहब हैं, डॉक्टर सादिर मेमन, उनके साथ में रहता हूँ मैं वहाँ। तो मेरी वहाँ पर ज़मीन है थोड़ी, तो मेरे को अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मेरे दिल में जज्बा पैदा हुआ दाऊद साहब ये कारनामा को देखे कि हम इसमें शामिल तो है, कुछ हिस्सा अपना भी डालें हम। तो मैंने अपने एक साथी से मशवरा किया, मैंने कहा यार यह मदरसा नहीं है इस इलाके में और यहाँ पर लोगों को कलमा पढ़ना नहीं आता है, गुस्ल करना नहीं आता, वुज़ू करना नहीं आता है, हम लोग कुछ काम करें यहाँ पर। बोला यार ये लोग नहीं करें। मैंने कहा अपन कोशिश करते हैं। बोला जगह का इंतजाम, मैंने कहा एक कमरा दे सकता हूँ मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 50,000 रुपये खर्च कर सकता हूँ, ये आप काम कर लें
تو ہمارا مشورہ ہوا, ہم نے دارالاسلام کے ساتھیوں سے مشورہ کیا, تو انہوں نے یہ ہمیں ایڈوائز دی کہ آپ اگر مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو لیڈیز کا کریں, کیونکہ لیڈیز کے ذریعے سے جو ہمارے دین کا کام پھیلے گا وہ زیادہ مؤثر ہوگا. ہمارے سمجھ میں یہ بات آئی اور ہم نے اللہ کی مہربانی سے 10 ڈھائی اس کے کمرے کی کوشش کی. جب اس کو توڑا ہم نے تو ایسے اسباب بنتے چلے گئے کہ وہ جب توڑا تو وہ یہ دیوار ہل رہی ہے, بڑھ رہی ہے, بولا اس کو آگے کرو پیچھے کرو. وہ 10 بائی 10 کی جگہ سے آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ جگہ ہماری تقریباً 60 بائی 60 کی جگہ پر مدرسہ قائم ہم نے کر دیا, تعمیر ہو چکا ہے اور اس کا افتتاح بھی دارالاسلام میں کر چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ لیڈیز کا مدرسہ جاری ساری ہو جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا فرمائیں, اللہ کامیابی عطا فرمائیں. اور بابا جی اس کا ہمیں جواب عطا فرما دیں کہ یہ دارالاسلامی جو کام کر رہی ہے یہ 200 ممالک میں, اس میں جو ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ کامیابی ہے. اللہ کا کرم ہے. ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں میرے آقا, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دودے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک دل کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مرشدی عطار پر, مرشدی عطار پر. ماشاءاللہ ان کا جذبہ تو بڑا زوردار ہے, کیا بات ہے. جذبہ بھی ہے, جذباتی بھی ہیں, جوشیلے بھی ہیں. تو وہ عرض یہ تھی کہ یہ جو دعوت اسلامی پھیلی نا, تو اس میں بس اللہ کا کرم ہے. جب اللہ کریم جب کام لینا چاہتا ہے تو وہ حکمت عملیاں بھی سجاتا ہے. تو اس میں یہ کہ دعوت اسلامی سیاست سے دور رہ کر اس نے کام کیا. ایک حکمت عملی یہ بھی ہے. بابا جانی آپ کو عید مبارک. عید کا دن ہے, آپ کو بہت میری دلی عید مبارک آپ کی. اور آپ باپو آپ آج 20 رمضان ہے. نہیں تو ہم تو عید کا پروگرام کر رہے ہیں نا بابا جانی. کیا ہوا جی اپنے یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ آج عید کا دن ہے, آپ کو پیش کی عید مبارک. اچھا پیش کی عید میں تو مبارک. یہ سوچ کر آیت عرض کروں گا کہ یہ جب بھی یعنی کہ یہ چلے گا نا ریکارڈنگ میں لکھا ہو کہ یہ 20 رمضان 1440 ہجری کو ریکارڈ کیا گیا, اور وہ مدنی منوں والا بھی وہی رمضان کی تاریخ لکھی جائے, کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ عید کا لائیو چل رہا ہے یا یہ عید کے دن ریکارڈ ہوا ہے. ارے عید تو آج ہے نہیں, پتہ نہیں ہم زندہ بھی رہتے نہیں رہتے. صحیح بات. ہماری عید تو ہو گئی نا, آپ کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. باپو دیکھو ابھی پیترا بدل دیا, ایسا نہیں. ہمیں آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں بھولتے نہیں ہیں. 2015 سے ہم پروگرام میں آ رہے ہیں, بالکل عید کے پروگرام میں آ رہے ہیں. اور وہ 2015 بتاؤں آپ کو کہ مدینہ فضائے مدینہ میں اتنی گرمی پڑ رہی تھی کہ بڑے بڑے پنکھے فیل ہو گئے تھے, اور آپ نے 2016 میں اے سی لگوا دیا. یہ آپ کا کرم ہے. کیا کرم ہے, میں نے لگوا دیا. 2016 میں اے سی لگا دیا. 2015 بہت گرمی تھی, ان لوگوں نے مرکزی مسجد شورا نے لگوا دیا. ہاں بھائی بالکل بالکل, وہ تو ہے ہی نا. آپ اکیلے چلے تھے, آج کروڑوں ہو گئے. یہ ہے دعوت اسلامی. یہ کون بتائے گا یہ کون سا مقام ہے؟ یہ بھائی حنیف بھائی ریاض الجنہ بول رہے ہیں. اور وجہ شریف جہاں پہ سرکار کی زیارت ہوتی ہے. بابا سنہری جالی تو نہیں, سنہری جالیاں. چلو آپ سنہری جالیاں بولو, اور بولو جس کو جو بولنا بولو. ہے مدینے نہیں ہے, یہ مدینہ منور ہے. مدینہ منورہ ہے, مسجد نبی کے اندر کا حصہ ہے. ایک بتانا ہے کوئی بھی. جی جہاں بابا میں نماز ہی پڑھی تھی. مسجد نبی کا اندر والا حصہ ہے. جماعت اپنا باہر وہ
बाबर इस्लाम वाला गेट है ये दाईं तरफ, इसके पीछे। आप कितनी बार मदीने गए? मदीने कितनी बार गए इन्होंने? जी आप बताइए। ये रियाजुल जन्ना है अंदर उसके। जिन्होंने रियाजुल जन्ना कहा उनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। सुभान अल्लाह। वैसे ये रियाजुल जन्ना इसका नाम नहीं है, इसका नाम है रौदतुल जन्ना। रियाज तो रोजा की जमा है, लेकिन आम लोग इसको रियाजुल जन्ना ही बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा दुरुस्त मान लिया जाता है कि पहचान लिया है आपने। एक और तस्वीर आपको दिखाई जाएगी और आपने बताना है। खान साहब, आप मदीने कितनी बार गए? मैं एक बार। ये कौन सा पहाड़ है? ये हुद पहाड़ घर। पश्तो में बोलो। हुद घर, पहाड़ को घर कहते हैं और जगह का नाम। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। ये बता दो मालूम है? अच्छा, जिसके हाथ में आएगा वही देगा जवाब ना। हाथ खड़ा करना है, जबान से नहीं कहना है। आप खड़े बाबा, आप चलें, माइक लीजिए, सीधा बताइए ये मकाम। एक गारे सोर आया है जवाब। ये वो जगह है जहाँ पे 70 साबिया करामान दफन किए गए थे। ये मुश्किल है, नहीं पूछ सकता। आम इस्लाम में भी मुश्किल है। इशारे 100 मरतबा मदीना देखे वो भी शायद ना पहुंच सके। अब अंधेरे में तीर लगा दे तो अलग बात है। बताइए भाई, इशारा मिल जाए इससे मुताल्लिक कोई। ये कौन से शहर में, पहले ये तय कर लें आप लोग। ये मदीना मुनव्वरा में। हाँ, वो ये दीवाने तो मदीना ही मदीना करेंगे ना। जद्दा शरीफ का नाम सुना है? जद्दा एयरपोर्ट, फिर मक्का मदीना आता ना। बहरहाल ये कौन से शहर में? मक्का में। अब मक्का में, मदीना या मक्का। मीना भी हो सकता है, अरफात भी हो सकता था, मुजदलिफा हो सकता था, मक्का मुकरमा। मक्का मुकरमा। अब बताइए कौन सी जगह है? ये जद्दा शरीफ का एयरपोर्ट। मक्का की कौन सी गली में जद्दा शरीफ है? ये कब्रिस्तान नजर आ रहा है। अब कब्रिस्तान बन गया। मक्का का ये कब्रिस्तान नजर आ रहा है। जोर से बोले, ये कौन सी क्या है, कौन सी जगह है, नाम बता दें या कुछ तो बता दें, ऐसा कि फाइनल हो, आप मुतमईन हो। मक्का, जद्दा और इस तरह, मतलब ये मदीना मुनव्वरा में ओत पहाड़ के नज़दीक हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो ये हैं 70 साहबा करम वहाँ का जो शहीदा है उनका ये मज़ार। चलो भाई, किसी और को कोशिश करने का मौका दिया जाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको चलें आप देखें, आप ज़ियारत कीजिए, बताइए। नहीं आ रहा, किसी और को दे दें। जन्नतुल माला। जवाब दुरुस्त है। वो आयत कौन सी है जो तमाम आयतों की सरदार है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलहम्द शरीफ। अलहम्द शरीफ आयत है। कहाँ से तशरीफ लाए? लड़काना। उम्र, नाम, उम्र? 65 साल। रसूल बख्श नाम है। रसूल बख्श, माशाअल्लाह। यानी सूरह फातिहा आयत है। ये तो अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं। 7 आयतें हैं इसमें। 7 आयतें हैं इसमें। एक आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है। वो आयत कौन सी है? कुर्बान लिए तारी, उम्र 64 साल, बाबुल मदीना कराची, पूरे माह के इत्काफ के लिए हाजिर होंगे। और कौन सी आयत तमाम आयतों की सरदार है? आयतुल कुर्सी। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा, कोई ये बताएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसको कलमा तैयबा कहते हैं, मैं नुक्ते कितने इसमें? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान अत्तारी है। मैं बिलपुर खास से आया हूँ। और उम्र 67 साल है। 67 और मैं 1982 से आपका मतलब मुरीद हूँ।
जी हाँ जी। और आपको मतलब है कि इज्तिमा जो पहले पहले हमारे मीरपुर खास में हुआ था ना, तो बरसात हो गई थी बहुत, उसमें मतलब हमारा अल्लाह अल्लाह, हाँ बड़ा इज्तिमा होता, जी हाँ, इज्तिमा। धर्म भरम हो गया, बहुत बरसात, हवाएं चली थी और जी हाँ, फिर हम मस्जिद में जमा हो गए थे, सब मस्जिद में से, हाँ बहुत आजमाइश हुई थी बराबर, तो उसमें थे आप। जी हाँ। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके घर में मैं ठहरता था, बेचारे चले गए। कलमा तैयब में कोई नुक्ता नहीं है। जवाब दुरुस्त है। कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम अस्सलाम। सूरत तौबा, उसके जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये अब इसका मसला सुन ले कि जब कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सूरत तौबा पर पहुंचेंगे तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और सूरत तौबा शुरू कर देंगे। और अगर कुरान करीम खोला और पढ़ना ही सूरत तौबा है तो अब अऊद और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ेंगे। हाँ, इसका मसला ये है। अशार कौन कौन सुना सकता है? यानी जो पहले सुना चुके हैं आप, वो नहीं पुरजोश तरीके से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान, मेरा नाम आप बताइए। रिजवान अतारी। अब भूल गया बाबा जान। मैं भी आपके बिरादरी का हूँ। बूढ़े लोग भूल जाते हैं जल्दी जल्दी। 74 इयर्स मेरा। माशाअल्लाह, 11 साल से आप एहतिकाफ कर रहे हैं। 11 साल से याद रहेगा माशाअल्लाह। आप बांग्ला भाषी है। बांग्ला भाषी, ये भी याद रह गया। मैं बांग्ला में भी आपको अभी सुनाऊंगा। अभी मैंने पहले वो शेर सुनाता हूँ मेंढक का वाला। अजब रिदन है बेरादर चार रंगे जानवर, शेर पंजा फीले गर्दन चश्मे वाहो बंगार। इसके माना मैं अर्ज करता हूँ, हमारा निगरानी शूरा बता सकता है कौन सी जबान में बोला? ये फारसी जबान में। फारसी जबान में कुछ अशार पढ़े, किसी जानवर का नाम बन रहा है। ये एक जानवर है, उसका 4 जानवर का खासरत उसमें है। अच्छा, शेर पंजा, उसका जो पंजा है शेर का तरह है। फीले गर्दन, हाथी के तरह गर्दन है। चश्मे वाहु, आंख जो है, आंख जो है हिरन के तरह है। और बंगहार, गधा का तरह आवाज है वाह। ये कौन सा जानवर है? अभी समझ गया बाबा जान? हम लोग जंगल में रहता नहीं है नी। बिल्कुल जंगल में रहता है। हम लोग जंगल में नहीं रहता ना। कहका नहीं लगा, जोर से हंसना। बाबा रिजवान भाई इसका क्या कह रहे हैं? हम लोग जंगल में रहता नहीं है, जानवर से इतना वास्ता पड़ता नहीं है। ये है मेंढक है। ये मेंढक है। मेंढक कैसे बोलता है? फ्रॉक को बोलता है। नहीं, मेंढक कैसे बोलता है? वो जिसका कैसा बोला अभी आप? आवाज कैसी है उसकी? आवाज वाह। मेंढक कैसा कभी बोला है? जी, बकरीद में ये आवाजें तो सुनते हैं ना अपने बकरों की। मेंढक भी ऐसे बोलता है वाह। हाँ, मेंढक तो ऐसा नहीं बोलता। मेंढक तो टुक 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 की आवाज निकलती है। मेंढक, अच्छा मेंढक के बोलने को क्या बोलते पता है किसी को आप में से? मेंढक के बोलने को कुछ पूछे ही है। मैं नहीं, इसका जैसे कि वो हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो मेंढक टर्राता है। तो ये नहीं करता मेंढक। मेंढक को पता चल जाएगा, पता नहीं क्या कर डालेगा। अच्छा बशार, एक तो इन्होंने सुना एक शेर हो दिया गया। रिजवान भाई ने। अब खान साहब सुनाएगा जोश में शेर। अच्छा। माइक करीब, रिजवान भाई जोश के साथ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां कोई चीज नहीं, लौहे कलम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफी इस बात दा पानी मिलिया जद ये बूटी लाई हूँ। सुभान अल्लाह जी। और कोई जोश उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से लेना देना है। जोश में शेर सुनाना है। माशाअल्लाह। जोश।
دیتا ہے رب اور دلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری الحمدللہ خوش قسمتی ہے کہ اس سال پھر رمضان دیکھنے کو نصیب ہوا، اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ مرشد کے سامنے آمنے بیٹھے ہیں. ہماری اتنی عمر سے نہیں ہے، نہ اتنے ارادے ہیں، نہ اتنی طاقت ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم نوازی ہے کہ 2015 سے مسلسل ایک ماہ کا اعتکاف کر رہے ہیں. اور بابا نے اپنا نام کتنا اچھا دیا ہے ہمارے ساتھ، برادری. میری برادری سے پوچھو ہماری کتنی خوش نصیبی. آقا نے ہمارے کھلی آنکھوں سے ایک مرشد کی زیارت کر رہے ہیں. یہ کم ہے کیا؟ یہ کم ہے کیا؟ ہم حاجی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، بابا کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، اور بچوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں. یہ ہماری خوش نصیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر کیوں نہ کہوں میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر کرما والا میٹھا میٹھا سونا سونا آقا پیرا پیر میرا. جوش میں شعر سنا دیں، جوش میں شعر، بس شعر. میں کیا میری اوقات کیا ہے، میں کیا میری اوقات کیا ہے. آقا نے نوازا تو بڑی بات کیا ہے. یہ ہم نے تو آقا کو خواب میں دیکھا، کلموں میں سنا، مگر مرشد نے وہ چیز دکھا دیا، وہ کچھ دکھا دیا کہ ہمیں آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. کوئی دعوت اسلامی ہے، رہے اور رہے گی. ہم رہے یا نہ رہے. ہمارے ساتھ کتنے پچھلے سال بزرگ تھے، اب نہیں ہیں، کل ہم بھی نہیں ہوگی. ہمیں نہیں پتا کل ہماری زندگی ہوگی یا موت ہوگی. بابا 64 سال کی الحمدللہ عمر ہو چکی ہے. مبین اتاری میں آپ کے سامنے کھڑا ہے. کوئی غلطی میری باتوں میں لگی ہو، کسی کو لگی ہو، اللہ کے رضا کے لیے مرشد کا صدقہ ہے. مرشد کہتے ہیں معافی مانگتے رہو، دل میں پھول بنتے رہیں گے، دل میں پھول کھلتے رہیں گے. الحمدللہ بابا کی مسکراہٹ دیکھیں آپ، کتنی عمر ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہیں. کیوں نہ کہیں، کیوں نہ کہیں میرا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر سونا سونا میرا پیر سونا سونا میرا پیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری زندگی ہے مکہ، میری زندگی مدینہ، میری زندگی ہے مکہ، میری زندگی مدینہ. میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرا شہر ہے مدینہ. میری زندگی ہے مکہ اور میری آرزو ہے یا رب ہو بقی میں میرا مدفن. میری آرزو ہے یا رب ہو بقی میں میرا مدفن. میں سدا رہوں مدینہ، میں سدا رہوں مدینہ. میری زندگی ہے مکہ، میری زندگی مدینہ. قمر زمان بھائی، قمر زمان. حضرت صاحب کا ایک شعر مجھے اس وقت یاد آیا، غالباً پرانے گلیمار بسم اللہ ہوٹل کے پاس حضرت صاحب کا بیان ہو رہا تھا، اور اس وقت یہاں چل رہے تھے الیکشن. ایک پرچی آتی ہے، اس پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو آپ کب الیکشن میں حصہ لیں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ پرچی کو پڑھا، مسکرائے، فرمایا کہ ہماری مدنی پارٹی ہے، ہمارا الیکشن سے کوئی واسطہ نہیں ہے. پھر 10 منٹ کے بعد دوسری پرچی آئی، اس پر بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے مناسب جواب نہیں دیا. تو آپ نے اس پرچی کو دیکھ کر پڑھا، مسکرا کر پھر ایک شعر پڑھا، تخت سکندری پر وہ تھوک نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. جی باپو جوش. بڑی یادداشت ہے. میں آپ کا مریض 84 سے ہوں.
آپ سے ملاقات بھی پہلی مرتبہ فیضان مدینہ میں ہوئی تھی. اس وقت فیضان مدینہ چھوٹا تھا. ہم دبئی سے آئے تھے تو ادھر آگے آپ کے پاس صبح فجر کے وقت ہم نے اسٹے کی تھی. تو آپ ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اسپیشل آپ اپنے گھر سے ہمارے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. کہاں سے آپ تشریف لائے تھے؟ میں دبئی سے ہوں. دبئی سے آئے جی. تو ایک مرتبہ میں نے آپ کو دبئی ایئرپورٹ سے بھی آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی. آپ باہر 1 نمبر ٹرمینل ہے, اس کے بعد مسجد ہے. مسجد میں پوری یعنی کھلی جگہ تھی. تو ادھر ٹرانسفر لگے ہوئے ہیں, ان کے باہر آپ سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں وہاں پہ تشریف لے کے آیا تھا آپ کے پاس. اس کے بعد پھر میں آپ سے ملاقات کی کسیس, دبئی کسیس میں آپ سے میں نے ملاقات کی. اور میں نے آپ کو آپ کے گلے لگ کے میں نے آپ سے ملاقات میں نے کی تھی. میں نے اپنا آپ کے ساتھ گلے لگ کے نا بات کی تھی. اور اس کے بعد پھر میں مرکز اولیاء ملتان شریف میں جدھر اجتماع تھے وہاں بھی میں نے آپ سے ملاقات کی تھی. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی اندر بوٹی مشک بچایا تے جان ہتھیلی تے آئی باپو ایسا نہیں کرو یار. دل دکھ بابا جان اور بھی ہے نا, اتنا ٹائم بھی نہیں آپ کے پاس. آپ کی مہربانی ہو کہ آپ آئے ہمارے پاس. دل دکھ جائے گا, معافی مانگ دو. دل بھائی مجھے معاف کر دو. ایسا نہیں بیٹھ جاؤ ابھی. آج سے باپو پیچھے خان صاحب ہیں. 30 سال سے آج ملاقات میری بابا جان نے. بابا میری بات سنو, میرے بابا جانی بات سنو. اتنے سارے لوگ ہیں, سب کا نمبر آنا چاہیے. اتنی بات آپ نے کر دی, بڑی مہربانی ہے آپ کی. بابو معافی مانگ. بھائی نہیں, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. معاف کرتے ہو میری. نور کی برسات ہو, معاف تو کر دو. نور کی برسات ہو, نور کی برسات ہو. اچھا مجھے اور سارے دنیا کی لوگوں کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. باپو یہ کیا پڑھا؟ باپو یہ نعرہ صحیح لگایا آپ نے. یہ پڑھا کیا ہے؟ ایک منٹ باپو, یہ نعرہ صحیح لگایا. دیکھو رکے تو صحیح. مدینہ باپو یہ نعرہ صحیح لگایا. رکے پہلے مجھے پیچھے زیادہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی ماجد باپو ذرا جان لگا کے شعر ہو جائے. باؤ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. یہ کھڑے ہو جائیں گے اس لیے نہیں, میں بتا رہا ہوں یہ امامہ کی بتا رہا ہوں کہ امامہ کیا چیز ہے. یہ امامہ کیا چیز ہے, یہ امامہ ہم جو پہنے کیا چیز ہے. 2015 میں بیٹھ جاؤ یار. 2015 میں 1 مہینے اعتکاف میں نے کیا. اس کے بعد 12 دن کا کورس سرائے مدینہ میں کرا. سرائے مدینہ میں اچھا وہاں پر اتنی گرمی تھی اور مطلب کہ اور رات کو بہت بارش ہوئی اتنی. ارے بیٹھو یار, بیٹھ جاؤ نیچے. محبت باپو نہیں کہ محبت سے. باپو پیار سے, باپو پیار سے بولو. باپو یہ ناراض نہ ہو گئے, ناراض نہ ہو گئے, پیار تو کرو. نہیں ناراض تھوڑی ہوتی. ہاں تو پھر ایسا وہ کیا, وہ اتنی گرمی پڑ رہی تھی رات کو اور وہ سرائے مدینہ بنا ہوا نہیں تھا.
ना खरीद रहा कुछ नहीं। अब सुबह के टाइम क्या हुआ कि हल्का लगता था कि तिलावत का, अब हम वहाँ पर तिलावत करने बैठे और तिलावत करने के बाद उठने के बाद पानी बारिश का अंदर आ गया था, साफ तो कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि मैं कलाम पाक रख के वापस आया, मेरा पाँव इतनी जोर से फिसला बाबा जाने कि 4 फीट दूर में गिरा और इतनी जोर से गिरा कि सर के बल गिरा। लेकिन क्या हुआ, इस इमामे ने मुझे बचा लिया। ये इमामा, मेरे बुजुर्ग साथियों, इमामा पहनो और मजे उड़ाओ। बापू शेर सुना दो ना, शेर सुना दिया ना बापू ने। शेर सुना दिया ना, बस अब दूसरा कोई खड़ा हो जाओ। शेर तो सुनाओ आज साहब। शेर तो आते ही नहीं। सिखा या रसूल अल्लाह हबीबे खालिके के तातुई बरगजीदा जुल जलाले पाके बे हमें तातुई सल्लु अला नाज़नीने हज़रत सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद नूरे चश्मे अंबिया चश्मे चरागे मातुई सल्लु अलल हबीब। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने अल्हम्दुलिल्लाह मील सुन्नत के साथ इन बुजुर्ग इस्लामी भाइयों का सिलसिला देखा। आप 2-3 चीज़ें नोट करें तो मील सुन्नत का इन बुजुर्गों के साथ इस प्यारे अंदाज के साथ बैठना, आप थोड़ा सा देख रहे हो कि मदनी चैनल पर जो हो रहा है, तो ये ज़ाहिर बात हम माह रमज़ान में इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और ये ईद के दिन हम आपको सिलसिला दिखाते हैं। बुज़ुर्गों के साथ सिलसिला होता है, ये काफ़ी देर से बुज़ुर्ग हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। इनके चेहरे देखें माशाल्लाह, एक तरह से इनके चेहरों पर हशाशियत और बशाशियत आपको नज़र आएगी। हमारे वो नौजवान इस्लामी भाई जो घरों पर हैं, जिनके पास बूढ़े वालिदैन हैं, घर में बुज़ुर्ग हैं, अगर आप इनके साथ कुछ लम्हे भी अच्छे अंदाज से गुजारेंगे, हशात बशाश होकर गुजारेंगे और शरीयत के दायरे में रहकर अगर इनसे 2 बातें करेंगे, मुस्कुराहटों का तबादला करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें आएंगी, इनके दिल खिल जाएंगे। आपके वालिदैन होंगे तो आपको दिल से दुआएं भी देंगे। जिस तरह हमें बचपन में वालिदैन की सोबत चाहिए थी, वालिदैन का वक्त चाहिए था, इसी तरह आज आपके वालिदैन को इस उम्र में आपका वक्त चाहिए होता है। इनको वक्त दें, इनसे प्यार करें, इनसे मोहब्बत करें और इनकी खिदमत करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। अमीर सुन्नत इन्हें मोहब्बत देते हैं, ये एक माह के लिए इधर आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इनकी वाकई हिम्मत होती है। अल्लाह करीम इनको और हिम्मत दे और हम सब का अल्लाह ईमान सलामत रखे। अभी दावत इस्लामी के मद्दी मॉल से वाबस्ता रहे माशाअल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुनिए माशाअल्लाह, यूं तो सब दाढ़ी वाले हैं माशाअल्लाह, लेकिन ऐसे भी इस्लामी भाई हैं इसमें कि जिनकी दाढ़ी छोटी है, तो वो जरा चेक कर ले कि एक मुट्ठी इधर से थोड़ी के नीचे से एक मुट्ठी से बढ़ गई ना तो काट दें, एक मुट्ठी नहीं हुई तो इसको बढ़ने दें, काटे नहीं, ठीक है ना। और तौबा जिन्होंने काट के छोटी कर दी है वो तौबा भी करें, ये गुनाह है ना। दाढ़ी मुंडाना, एक मुट्ठी से घटाना, ये हराम है। अस्तगफिरुल्लाह। बचपन से खाते 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 ये दिन आ गए हैं, कुछ नेमतें रह गई हैं जो कि बुजुर्गी के लायक। दांत नहीं है, सेवियां, हलवा, चूरी, जापानी फल, क्योंकि ईद आगे आ रही है। बच्चे हैं, कोई गंढेरी लाता है, कोई कुछ लाता है, हम ऐसे देखते हैं जैसे कोई बच्चा देखता होता है। मुर्शिद साहब दुआ फरमा दीजिए, मैं ये दांतों की खैरात मांग रहा हूँ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर फरमाए। दांत चाहिए अल्लाह करम। कितनी है उम्र आपकी? मेरी 62 साल। 62? अभी से दांत चले गए? दिल तो बहुत करता है, क्यों जवानी में खरोटी बहुत खाए, सब चीज खाई, मगर अब महरूमी इतनी है, क्या अनकरीब थोड़ी सी चीज रह गई, जापानी फल, अंगूर, आम, ऐसे। जन्नत में खाएंगे इंशाअल्लाह।
अच्छा अच्छा मेरा दांत आपको दे देता हूँ खरोट मुझसे से ले लेता हूँ, खरोट मुझसे से ले लेता हूँ। 1 किलो अखरोट लेके आइए, अब दिखाइए दांत दे देता हूँ। नहीं, इससे काम चल जाता है उससे। ठीक। ये नकली बत्तीसी से वो कुदरती की तो बात हो रही है, ये गुजारा हो जाएगा। गुजारा होगा तो खरोट तो नहीं खा सकूंगा। तो अखरोट ना से जापानी फल तो खा सकेंगे, जापानी फल, अंगूर खा सकेंगे। हाँ जी, जापानी अब जापानी को छोड़ो, मदनी फल खा सकेंगे, खीरनी भी खा सकता हूँ। एक बहुत जरूरी काम, बापू माफी चाहता हूँ आपसे, आपने मतलब थोड़ा तजल्ली डाली है, गुस्सा ये कर्म नहीं है, तो मेरा कर्म बदनाम हो जाएगा। देखो ये अभी तक ये परेशान है इस्लामी भाई, इनको बुरा लगा है, मैं सही बोलता हूँ। देखो दिल आजारी गुनाह है, गले मिल जाओ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपका चेहरा फेस रीडिंग कर रहा था मैं। गले मिल जाओ, शाबाश, और सच्चे दिल से माफ। एक ही बिरादरी में क्या लड़ना था, हमारी एक ही बिरादरी है। खान साहब से माफी हो, खान साहब को भी झाड़ा था। इन बेचारों को बड़ी मुश्किल से मौका मिला यार, जिनकी बारी नहीं आई, अभी इनकी हसरत बाकी है। देखो कभी से ये कोशिश कर रहे हैं, तो ये बेचारे हसरत इनकी होती है, तो इसलिए किसी को आप बापू इज्तिमाई तौर पर बापू की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। वो बापू, जिस का दिल दुख गया, मैं क्या कर रहा है? तो आप इतनी देर लगाते तो मैं मांग लेता हूँ। अगर मेरी तरफ से किसी बुजुर्ग भाई का दिल दुखा है तो खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। माफ किया। अपने आप को माफ किया, लेकिन इतना तकब्बुर में मत रहो। खान साहब तकब्बुर नहीं है, बापू है बहुत बेचारे, मतलब पिछले साल भी किया था या बापा जान, बात ये है कि हर वक्त ये नारे लगाते हैं, नारे हर वक्त, किसी वक्त ना। नहीं सही है, वो सही है, लेकिन खान साहब नारे तो अल्लाह रसूल के लगाते हैं। पर नारा लगाना है, एक मजमा बैठा हुआ है, इज्तिमा बैठा हुआ है, एक बात हो रही है, सवाल हो रहा है, ये नारे शुरू हो गए। देखो बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं। माइक में अगर इधर फैज आए, अहमद रजा की बरकत से इधर आए। वो तो है ही, सब आए, सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बापू, अब बापू खान साहब को राजी करो, खान साहब भर के बाबू खान मौका मिला, खान साहब नारा लगाएंगे, और पता नहीं किस ने भर के रखा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने मुर्शिद, फैज़ाने मुर्शिद। अब राजी हो जाओ खान साहब, माफ कर दो, राजी हो जाओ।